Is it really important to spend money on a product management course? Is it really important for us to spend money on an MBA? Then only we'll become a product manager. Can we not just take the offline or the free resources on YouTube? What are the different ways through which I can learn all of this, right? I have tried to create a small structure for you to think about. All of these points which I have put across, which is the first thing is structured learning, जो हमने पहली बात की. Second, community support. Third, learning by peers लिख दिया. Fourth, guest sessions की guest sessions होने चाहिए. Live case studies होनी चाहिए. Live classes होनी चाहिए. From this network, right? Do you get referral support, right? Seventh is, do you get personalized mentorship? Next, do you get advanced learning opportunities, right? Next, do you get प्लेसमेंट प्रिपरेशन सपोर्ट. रेफरल सपोर्ट और प्लेसमेंट प्रिपरेशन सपोर्ट दोनों अलग चीजें हैं. लास्ट इज द नेटवर्किंग इंजन, कि क्या मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी होगी या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी. एवरी एपीएम वर्क्स 10 hours a day. In a month he or she works 22 days, 8 days वीकेंड में प्लस माइनस हो सकता है उसके अंदर. दैट इसेंशियली मींस आई एम वर्किंग 220 hours every month. मल्टीप्लाई बाय 12, 2600 आवर्स आते हैं. उसको मैंने 18,000 से डिवाइड कर दिया, यानी कि एक एपीएम के एक घंटे की वैल्यू $7 है या 500 रुपीज है. बात क्लियर है? द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज took all of these different types of courses and tried to map them. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिखा कि फ्री यूट्यूब प्लेलिस्ट. सेकंड मैंने लिखा यूडेमी. थर्ड मैंने लिखा अ सीबीसी लाइक पीएम स्कूल, या कल को मैं अपना सीबीसी खोलता हूं या कोई खोलता है जो $600 का हो सकता है. मैं 600 का ना करूं, हो सकता है मैं 100 का करूं, जितने का भी करूं फर्क नहीं पड़ता उस चीज से. ठीक है, बट सीबीसी इज द थर्ड थिंग. Fourth is a CBC which is slightly longer. Then I said, and last I wrote like an MBA which essentially costs me 25 lakh rupees on an average. तो $35,000 लगते हैं. अब क्या करते हैं, अब एक एक करके पूछते हैं. Do you think there is structured learning in YouTube? There might be some channels, there might not be some channels, but on an average बोल रहा हूं, ये सारा का सारा लॉजिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो on an average there is not structured learning on YouTube. तो I am giving it 1 point. ठीक है. Similarly, is there community support on YouTube? No, there is not community support on YouTube, because the only way you can interact with people is through comments, or if the creator creates a Telegram group or whatever and whatnot. But ideally YouTube playlist mein, if you are a new person with 0 PM experience and 0 network, so there is no community support. ठीक है. Is there learning by peers? That is also not there. You don't know all of the 45 people in the chat. I am pretty sure you will not be able to knowing. हो सकता है एक दो बंदे ऐसे हो जो लोगों को जानते हो, बट इन जनरल, राइट, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड पीपल. ठीक है, तो लर्निंग बाय पीयर्स भी नहीं है. गेस्ट सेशन अगर मैं लेके आया तब गेस्ट सेशन होगा, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है. दैट मींस गेस्ट सेशन के लिए भी मैं एक ही पॉइंट दूंगा. एक लाइव केस स्टडीज अगर मैंने की तो ठीक है, यानी कि मेरे पे डिपेंडेंट है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो एक पॉइंट उधर भी दिया. अच्छा, रेफरल. नाउ लाइव क्लासेस हो रही हैं, चलो मैंने वो भी मान लिया कि मैं लाइव करता हूं. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट डू इट, लॉट ऑफ पीपल डू इट. ठीक है, उसको भी मैंने एक ही पॉइंट दिया. रेफरल सपोर्ट को, अब द पॉइंट इज ऑल ऑफ यू पीपल हु आर कमिंग ऑन यूट्यूब, आई डोंट नो वेदर यू विल कम अगेन. I don't know what kind of interaction will happen. I really don't know where you are coming from, where you are standing. Do you have a job? Do you don't have a job? All of those things I don't know, right? So there is no referral support. Even if you will reach out to me, probably I will only support those people जिन्होंने फाइट मारी है, राइट? तो रेफरल सपोर्ट भी नहीं है. ठीक है, पर्सनलाइज वन ऑन वन लर्निंग भी नहीं है. अगर वैसा होता तो तुम लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट ही नहीं करते. तो पर्सनलाइज वन ऑन वन मेंटरशिप भी नहीं है, एडवांस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, प्लेसमेंट सपोर्ट भी नहीं है, और नेटवर्किंग इंजन भी नहीं है, राइट? तो सबको मैंने एक एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट दे दिया. टोटल मेरे को मिल गए 11 पॉइंट. ठीक है, आई एडेड ऑल ऑफ देम टुगेदर, इट्स 11 पॉइंट्स. सिमिलरली यूडेमी के कोर्स में क्या होगा, अब यूडेमी हैज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, बिकॉज उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है. दे हैव सेड पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है. करेक्ट? यूडेमी करता है वो, तो यानी कि आई गिव इट 8 out of 10. डज यूडेमी गिव यू कम्युनिटी सपोर्ट? इट डज नॉट गिव यू कम्युनिटी सपोर्ट. फॉर श्योर इट डजंट गिव यू कम्युनिटी सपोर्ट. ठीक है, तो क्योंकि यूडेमी पे भी तुम मैक्सिमम क्या कर सकते हो, दे हैव अ पेज इन विच पीपल कैन पुट क्वेश्चन, somebody might answer, somebody might not answer, right? Is there learning by peers in Udemy? It is not there, right? Is there guest sessions in Udemy? Maybe there are, maybe there aren't. ठीक है, तो I probably give 1 point. Are there live case studies? Yes, there might be live case studies, so I give you 2 out of 10. Please repeating this, I have given it 1, you might give it 2. It's a model, right? It's a mathematical model. It will just give you a sense, a direction. ठीक है,
तो उसी तरह मैंने यूडेमी के लिए किया. अब सीबीसी पे जाओ, सीबीसी में देयर इज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग बिकॉज देयर आर लाइक 9, so you will get 9 out of 10. Community support, because in a CBC there are like-minded people around you. Everybody wants to crack an interview, everybody is preparing for the same thing, everybody has paid $600 for it, so there is learning. So you will not only just learn by Shravan, you will also learn by people around you, because you will do assignments together, you will do product sense problems together, all of those things, right? Next, there will be guest sessions in a CBC. People will be called. There will be good speakers. Like, for example, if I launch my guest CBC, I'll probably call somebody from Miro who is a group product manager or who has just transitioned and done things like that, right? Are there live classes? Yes, there are live classes. ठीक है. Is there a referral support? Yes, there is a referral support, because तुम मेरे साथ 8 हफ्ते काम कर रहे हो, तो I know if you have put effort in and out, so I can refer you, or the people or the guest speakers who are coming, or the people who are your peers, maybe in their company also there are opening and you might be relevant for it, right? So that is also there. In a CBC there is personalized one-on-one भी होता है, क्योंकि mentors होते हैं. जैसे अगर हम next leap पे जाओगे तो mentors होंगे. Mentor is not a speaker. There's a difference between a speaker and a mentor. Mentor is someone who is like early stage PM who is just to guide you. तो mentors भी होते हैं. Advanced learning opportunities भी होती हैं, क्योंकि if I am on a CBC based platform, I would not just want you to just learn this. I would also want you to learn design thinking. I would also want you to learn something else, right? तो वो भी है. क्या प्लेसमेंट सपोर्ट है? टू अ सर्टेन एक्सटेंट है. तो आई बट इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब लाइक वी माइट ट्राई व्हाटएवर इट इज, बट ऐसा नहीं होता देयर इज अ श्योर शॉट प्लेसमेंट. whoever is selling you sure shot placement is scamming you for sure, right? It is dependent on you. So I give it 6. And networking engine, because you meet peers, because you meet guest speakers, because you meet your instructor and spend time with them, there is a network that you will start building, राइट? जैसे मैंने जब अपना सीबीसी लिया था लास्ट टू लास्ट ईयर, जब मैंने 2 सीबीसी लिए थे, a lot of people actually started talking to the guests, like the CPO of M-Fine. तब M-Fine अच्छा कर रही थी. People just went there and they just had an interview and they could, and the person actually knew because he was a speaker, so he knew that this person has put an effort, right? ये श्रवण के कोहर्ट से आ रहा है. तो I सिमिलरली मैंने फिर सीबीसी ऑफ $1,500 उसको भी मैंने रेट करने की कोशिश की. उसमें मैंने बोला कि ओके, इफ इट्स $1,500 द क्वालिटी ऑफ गेस्ट सेशंस माइट बी बेटर, तो आई एम गिवन इट 8 लाइव, बिकॉज द कोर्स इज लॉन्गर, so there will be more number of case studies, so I have given it 9 instead of 7. और इसी तरह मैंने एक मॉडल बनाया. और इफ यू गो टू एमबीए में स्ट्रक्चर्ड लर्निंग भी है, कम्युनिटी सपोर्ट भी है, लर्निंग बाय पीयर्स भी है, गेस्ट सेशन भी है, लाइव केस स्टडीज भी है, रेफरल भी है, सब कुछ है एमबीए में. और तो यहां तक बात समझ में आई कि YouTube को 11 पॉइंट्स मिले, Udemy को 26 मिले, जो 2 महीने का सीबीसी है उसको 78 मिले, जो 4 महीने या 6 महीने का उसको 87 मिले, एमबीए को 95 पॉइंट्स मिल गए, क्योंकि वो सब में अच्छा है. यहां तक सबको क्लैरिटी है? देयर अगेन आई एम रिपीटिंग, YouTube का ऐसा हो सकता है, यू माइट एंड अप विद 15 पॉइंट्स, Udemy में यू माइट एंड अप विद 30 पॉइंट्स. अपने हिसाब से कर लेना, इट्स जस्ट अ मॉडल. अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक और assumption ले रहा हूं, प्रोडक्ट डिजाइन क्वेश्चन की तरह ही. मैंने बोला कि एवरी वैल्यू पॉइंट इज इक्वल टू $1 per hour. एवरी वैल्यू पॉइंट इज इक्वल टू $1. Whatever model you want to do, मैंने $1 लिया. So logically you are making, with every hour that you spend on YouTube, you are effectively making money worth $11, right? Every hour. अभी मैं आऊंगा, उसके आगे भी आऊंगा. $11. Similarly in Udemy you are making $26. CBC कर रहे हो तो $78. CBC बड़ा वाला कर रहे हो तो $87, और MBA कर रहे हो तो $95 पर आवर. ये मेरा लॉजिकल सिर्फ एक कॉन्स्ट्रक्ट बनाने के लिए मैंने ये आई टुक एन assumption, राइट? यहां तक बात सबको क्लियर है. लेकिन एक और पॉइंट है इधर, यहां पे द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव रिटन इज दैट because at any given point, for example, जब आप YouTube में शुरू करते हो, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है ना, उसके बाद ही नेटवर्क बना सकते हो ना. तो at any given point, all these 11 points will not be valid. What I mean by that is, I'll repeat. देखो, जब आपने कोई भी कोर्स शुरू में शुरू किया, ठीक है, शुरू में तो आपको पढ़ाया जाता है, शुरू में आपके गेस्ट सेशंस थोड़ी ना होंगे यार. रेफरल सपोर्ट तो आपको एंड में मिलेगा ना, 8 हफ्ते के बाद. ऐसा थोड़ी ना होगा कि फर्स्ट वीक में ही आपको रेफरल सपोर्ट मिलेगा. तो शुरू के पहले 4 हफ्ते में probably the first four points, which is structured learning, community support, learning by peers and guest sessions, they make sense. So at any given point, right, 4 of these pillars are working.
4 or 5 of these pillars are working. So logically you just multiply the number of $11 to number of value points and you say कि okay, अगर $11 है, मैं हर एक वैल्यू पॉइंट एट एनी गिवन पॉइंट आई विल बी ओनली बी एबल टू टेक 4 आउट ऑफ दीज 11. तो लॉजिकली मैंने 11 को फिर 4 से 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मैंने फिर 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया. सिंपल लॉजिक. मैंने कहा मेरे पास 11 चीजें होनी चाहिए एक प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए. I need 11 value points, right? But at any given point in time, not all 11 will be applicable because placement support will happen towards the end only, right? Placement support के time पे आपको structured learning नहीं चाहिए क्योंकि आपने वो पढ़ लिया है, right? So logically I'm saying at any given point, there are probably 3 or 0.4% or 4 of these value factors which are working. तो मैंने सबको 0.4 से multiply कर दिया, तो मेरे को मिल गया 4.4, 10.4, 31.2, 34.8, 38. मैं अगेन मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है? तो टोटल टाइम कितना लगेगा अब तुम्हें लॉजिकली कि अगर तुम्हें एक पीएम बनना है एंड यू आर जस्ट मेकिंग $4.4 वर्थ ऑफ टाइम एवरी मोमेंट दैट यू स्पेंड ऑन यूट्यूब, राइट? 18,000 से डिवाइड कर दे उस चीज को, राइट? यू विल गेट 4,136 आवर्स. तो मैंने क्या किया, मैंने पहले बोला कि एवरेज एक एपीएम $7 कमाएगा आफ्टर ही गेट्स अ जॉब, राइट? लेकिन YouTube से हर एक घंटे में $11 कमा सकता हूं मैं, लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट आई विल बी एबल टू मेक ओनली 40% ऑफ इट बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज एप्लीकेबल. सो लॉजिकली ऑन every hour that I spend on YouTube, I am getting worth $4.5. तो मैंने बोला कि अगर मेरी एपीएम की नौकरी लगती है 15 लाख रुपए की, तो मेरे को कितने घंटे लगाने पड़ेंगे ताकि मैं 15 लाख के वर्थ हो जाऊंगा. तो मैंने 18,200 को डिवाइड कर दिया 4.4 से. उससे मुझे पता चला कि मेरे को 4,000 घंटे लगेंगे एवरेज, ऑन एन एवरेज. किसी का प्लस हो सकता है, किसी का माइनस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? उसी को 24 से डिवाइड किया, आई गॉट द नंबर ऑफ डेज, राइट? ऑन एवरेज 4,000 आवर्स. मैंने उसको 24 से डिवाइड किया, ठीक है? तो प्रैक्टिकल एफर्ट अगर मैं कंसिस्टेंट एफर्ट करता हूं, if I believe that for these 4,000 hours how many days do I need, right? 24 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है? तो मेरे को मिला 172 days, राइट? लेकिन अब मैं हर दिन 24 घंटे तो पढ़ता नहीं हूं. I only study 2-3 hours a day. अगर मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूं तो 172 मल्टीप्लाई पे 8 भी हो जाएगा. तो आपको प्रैक्टिकली 3 से 4 साल लग जाएंगे अगर आप सिर्फ इसी तरह से पढ़ रहे हो, राइट? तो लॉजिकली आपकी कॉस्ट कितनी इनकर होगी? आपने क्या किया, आपने बोला कि मेरी जो टोटल कॉस्ट जो इनकर हो रही है वो है 4,000 मल्टीप्लाई बाय $7 बिकॉज आपको 4,000 घंटे, तो आपको $28,000 देने पड़ रहे हैं, या प्रैक्टिकली 15 या कम से कम 20 लाख रुपए लग रहे हैं आपको जस्ट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. आई रिपीट अगेन, मैं एक बार क्या करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं. मेरे कहने का मतलब है, जब मैंने क्या किया, आई सेड एट एनी गिवन पॉइंट यूट्यूब इज गिविंग मी वैल्यू ऑफ $5, राइट? I said I will divide it by 18,000 because if I get a job, I will earn 15 lakh rupees. So logically, I will only get 4,000 hours, right? Now, every day I study for 3 hours. I am assuming that, right? So practically, मेरे को 1300 दिन लगेंगे, which is equal to 4 years, right? Now, because at every given point, right? At any given point, I am losing $7 as an APM. तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो यू विल इसेंशियली गेट $29,000. लेकिन आपकी सैलरी तो $18,000 की लग रही है, तो यानी कि आपने $10,000 या 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए गवाए. अगर आप YouTube की प्लेलिस्ट से काम कर रहे हो तो आपने गवाए हैं, क्योंकि आपको उतना टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पास ये सारी नेटवर्क्स है ही नहीं. मेक सेंस? यहां तक बात क्लियर है कि मैंने क्या किया? What did I do? Is everything clear till now? What I tried to do? अब Udemy के कोर्स में सेम लॉजिक, राइट? बाय दैट लॉजिक what is happening is that I only need, right? I only need 1,700 hours. 1,700 hours को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो लॉजिकली मेरे को $12,000 ही मिल रहे हैं. मतलब आई एम ओनली एबल टू मेक ऑलमोस्ट 7-8 लाख रुपीस का कॉस्ट है मेरा. तो प्रैक्टिकली मैं आफ्टर आई गेट अ जॉब, I will have a job of 15 lakhs, but the cost that I incurred in time and money was only $12,000. So practically मैं $6,000 कमाऊंगा अगर मैंने Udemy का कोर्स लिया. तो यहां तक तो लॉजिकल हो गई बात कि Udemy का कोर्स वैल्यू तो ऐड करता है, ठीक है? मेक सेंस? तो I actually made $6,000. अब CBC पे आते हैं. CBC पे
in a similar model, I will essentially make $14,000, right? But उन $14,000 पे मैंने $600 तो पे भी किए हैं, तो वो भी सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मुझे पता लग गया कि आई एम मेकिंग $13,000, राइट? सिमिलरली जब मैंने $1,500 वाला सीबीसी लिया, वहां पे मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा, वहां पे मैं $13,000 का अगर मेरा सेविंग हो रहा है, तो वहां पे भी $13,000 करो। और एमबीए में तो do whatever, right? I am in loss. I am saying I will lose $20,000 because मैं $35,000 यहां से पे कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, अब ये जो मॉडल है ना, ये सबके लिए सिमिलर काम नहीं करता। इट विल वर्क डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल, right? Up there can be 6 different types. I have written 4. I'm sorry for that. There are 6 different types of persona. All of you people will lie in some of the personas. The first one is somebody who is a fresher with zero experience from a tier 3 college. ठीक है? Second, somebody who is a fresher with zero experience but from IIT IIM. Third, somebody who is already a working professional but not in a similar domain but a similar domain. Like कोई डेटा साइंस, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डेटा साइंटिस्ट है, कोई प्रोडक्ट मैनेजर है, उनका डोमेन सेम नहीं है पर सिमिलर है because they work with product managers. Fourth persona is somebody who's working as a working professional but not in a similar domain like sales, arts, accounts. इस तरह के डोमेन में से आ रहा है. Fifth, somebody who is a working professional with a lot of experience but in a similar domain, right? Which is engineering, data science, project manager, QA, right? And last one is somebody who is a working professional with a lot of experience but in a non-similar domain like sales, arts, accounts, economics, etc. Right? ये persona 6 के 6 समझ में आ गए? Does everybody in the call get covered in all these 6 personas in some way?